Assalamu alaikum class. Today our topic of presentation is TAT, AND, HTP and how they administer. Like these are the simply three methods which are performed on the driver to see their acting skills and behavior during driving. First of all, I will introduce my group members: Muhammad Abdullah, Sidra Arif, Abdul Rashid, Tahmeena Khan, Kashif Shabir and Nabil Hashmi. Now we will move toward our topic. First of all, we will discuss about HPT. HPT simply mean the hazard perception test. Hazard perception test एक basically एक driving test है. This was firstly introduced in the United Kingdom and it helped motorists to overcome on the accidental issues which perform on road. HTB involves a touch-screen computer-based test which measure your ability to recognize potentially dangerous situation on the road and react properly. मतलब अगर हम इसके बारे में देखें तो ये है कि HTB एक सिंपल टेस्ट है जो अगर हम लर्निंग बेस पे जाएं, ड्राइवर लर्निंग बेस पे जाता है तो उसके लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको। लेकिन ये है कि ये हम एक लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे उसकी, हम एक उसके कंप्यूटर बेस्ड देखेंगे। लाइक अगर वो शुरू में ड्राइविंग सीख रहा है, उसके ड्राइविंग के दौरान अगर हम उसको कोई स्किल्स या कोई चीज़ें सिखा रहे हैं तो वो उसके HPT टेस्ट में जाएंगी जो कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स को बेहतर करेंगी। और अगर इन केस ड्राइविंग करते हुए कोई एक्सीडेंट परफॉर्म होता है, उस एक्सीडेंट के दौरान वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसके रिएक्शंस को देखने के लिए और उसकी स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं जिसको हम सिंपली कहते हैं HPT टेस्ट। और ये एक लाइव परफॉर्मेंस नहीं होती, ये इट्स अ सिंपली अ टच स्क्रीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. Now we will see how HPT work. HPT, this test measure your ability to recognize potentially dangerous situation and react properly to this situation when driving. Means simply the same we discussed in the previous slide. For the booking of the HPT, we simply need a book and pay a fee to take HPT. मतलब there are government services available for HPT test, and if there is no government service we can call at 132213 and at service center there which are performed at different places in the country. So HPT simply work with the help of the government assurance and service center. In this slide we will see where to go for HPT, like how can we perform HPT test. For this we simply go to the centers for HPT test. But if you are living in an area where no HPT center is available, you can simply perform test by calling to the centers. And before going to this center you will need to fulfill their requirements and take license and documents which are needed during this test. Now we will move toward the second test, which is developing and practicing hazard perception skills. In this we will see that if you have a PI license then you have already developed some hazard perception skills. मतलब अगर आपके पास एक PI लाइसेंस है तो उस लाइसेंस वो आपको इसलिए मिला होगा क्योंकि आपके पास पहले उसके अकॉर्डिंग कुछ स्किल्स होंगी जो आपको सिखाई गई हैं ड्यूरिंग दैट सेशन. However, you need to develop these skills further as solo driver because you are no longer under supervision. मज़ीद आपको ये स्किल जो हैं वो एज अ सोलो ड्राइवर परफॉर्म करनी पड़ेंगी क्योंकि अब आप किसी की सुपरविजन के अंडर नहीं हो. मीन देयर आर नो वन टू गाइड फॉर यू. यू मस्ट बी एबल टू कॉपी ऑन यूर ऑल विद ड्राइविंग हैज़र्ड्स दैट अराइज. आपको खुद ही यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग द ड्राइविंग टू सेव यूर सेल्फ एंड अदर लिव्स. मतलब आपको अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो एज अ ड्राइवर. सो PI लाइसेंस में आपको कुछ स्किल्स और बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस में जाते हो. उसमें आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हुए ड्राइविंग सेंस में जाना है अपना. द बेसिक हैज़र्ड परसेप्शंस आर कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्राम अदर व्हीकल्स. मतलब कि एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना.
Now we will move toward our next slide, learning safe driving behavior for HPD। मतलब कि आपको कौन से बिहेवियर शो करने की ज़रूरत है ड्राइविंग के दौरान। तो इसमें हमें सिंपली ऑल द बेसिक ट्रैफिक रूल्स को अपनाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्राइविंग करते हुए हमें अल्कोहल, ड्रग्स या मेडिसिन विदाउट लिमिट यूज़ नहीं करनी। हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता, डिजिटल स्क्रीन यूज़ नहीं करनी, हॉर्न बिला वजह के हॉर्न यूज़ नहीं करने। इन सब बिहेवियर्स को देखते हुए हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है ड्राइविंग के दौरान। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड टेस्ट विच इज़ अ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट विच इज़ अ टैट सिंपली है क्या इज़ अ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेस्ट developed during the 90s by Henry A. Mary and Christian D. Morgan at Harvard University। मतलब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस साइंटिस्ट से परफॉर्म किया गया हुआ एक साइकोलॉजी टेस्ट है। परपोनेंट्स ऑफ टेक्निक अजर दैट सब्जेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें हम सिंपली अगर देखें तो ये आएगा कि हम एक सब्जेक्ट देते हैं किसी भी एक ड्राइवर को, उसके आगे कोई भी एक सब्जेक्ट रखा जाता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल लेवल और उसकी मेंटल स्टेट को या उसकी साइकी को समझते हैं कि ड्राइविंग के दौरान उसका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन होगा। तो सिंपली ये टेस्ट हम किसी भी ड्राइवर की साइकी को समझने के लिए, उसकी मेंटल स्टेट को समझने के लिए परफॉर्म करेंगे। कि मतलब अगर उसके फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि सामने से कोई एक ट्रक आ रहा है, तो उस ट्रक को देखते हुए ड्राइवर पैनिक कर रहा है या वो एक रिलैक्स स्टेट में रहता है, उसकी साइकी को समझने के लिए वो सब्जेक्ट उसके आगे आया है। तो हम उसको देखेंगे उसकी साइकी को समझते हुए कि अगर ड्राइविंग के दौरान उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो उस चीज़ के ऊपर कैसे ओवरकम पाएगा। तो ये टेस्ट सिंपली उस चीज़ के लिए है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, रिलैक्स फील करेगा, पैनिक करेगा। बिकॉज मैनी आर द एक्सीडेंट विच आर परफॉर्म ड्यू टू द पैनिक कंडीशन ऑफ अ ड्राइवर। The history of the TAT. TAT was developed by American psychologist, same as was discussed during the previous slide. Mary wanted to use a measure that would reveal information about the whole person, but found the compensated test for his time lacking in this regard. मैरी चाहता था कि वो एक आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ले उसकी मेंटल स्टेट के बारे में, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से वो इस टेस्ट को कम्प्लीटली तौर पे परफॉर्म नहीं कर सका। Mary and Morgan spent the 90s selecting pictures from the illustrative magazine and developing the test। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मैगजीन से पिक्चर ली और उनको एज अ सब्जेक्ट रखते हुए उन ड्राइवर्स की या उन पर्सनस की एबिलिटीज़ को चेक किया। आफ्टर 3 वर्जन ऑफ द टेस्ट, उन्होंने 3 टाइप के मतलब के टेस्ट परफॉर्म किए थे जिसको उन्होंने एक सीरीज़ बना दिया था, ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़। और मॉर्गन एंड मरी डिसाइडेड ऑन द फाइनल सेट ऑफ द पिक्चर डी सीरीज विच रिमेन इन यूज़ टुडे। और इन 3 सीरीज़ के बाद उन्होंने इस पिक्चर का एक फ़ाइनल सेट दिया था जिसको डी सीरीज़ तक, और वो था और वो जो कि आज कल भी यूज़ हो रहा है। आफ्टर द वर्ल्ड वार टूर द टैट वाज अडॉप्टेड मोर ब्रॉडली बाय साइकोनालिसिस्ट एंड क्लिनिशियन। टैट इज सिंपली है कि मतलब एक पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। मतलब अगर हम इसमें देखें तो हम ये देखेंगे कि ये एक पर्सन को उसकी थिंकिंग, उसके इमोशंस को लिमिटेड कर देती है। मतलब अगर किसी के बचपन में या कुछ उसकी किसी भी लाइफ स्टेज में कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आ जाता है, वो उस इंसिडेंट की वजह से वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे काबू नहीं रख सकता क्योंकि वो उसके माइंड में स्टक हो जाता है। उस वजह से ड्राइविंग के दौरान जब भी वो ड्राइविंग करेगा वो अपने फेयर पे ओवरकम नहीं कर पाएगा और उस फेयर की वजह से वो एक्सीडेंट का शिकार होगा। तो हम उसकी थिंकिंग्स को, उसकी इमोशंस को और उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि हम उसको एक रिलैक्स स्टेट में ड्राइविंग बिहेवियर की तरफ लेके आएँ। लास्ट में दिया गया हुआ है साइकोनोमेट्रिक करैक्टरिस्टिक्स है, उसकी वैलिडिटी है और रेलिएबिलिटी है। रेलिएबिलिटी सिंपली मीन क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड वैलिडिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकली।